Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have to discuss that how to determine the soil texture. In the last practical, we just gone through the theory and assumptions that we follow the Stokes law for the determination of the soil texture because it is dependent on the movement of soil particles or the settling time of soil particles in the fluid. Today we'll see how it works. We measure it by using a instrument which is called as hydrometer, and basically this is the same hydrometer or similar hydrometer which is used to determine the specific gravity of milk you might have seen. Here we will determine the specific gravity of the soil suspension, and that specific gravity is dependent upon the mass of the solids present in that fluid. Because when we add soil into the water, then there is a suspension, and the larger particle will settle down earlier while the lighter particle will settle down later on. So the amount of particles which are suspended in the water or in that fluid, so that will gives us the specific gravity. So it means if we have more particles, so we will have more specific gravity. If we have less particles, then we will have a less specific gravity. So this is the instrument which we generally use. This one. And here we just dip it into the cylinder. We will see that how long is this cylinder, and then we can see the reading from here, and then we can note it. So coming toward the methodology, we have to weigh the air dried soil that contains 40 gram of dry soil. 40 gram of dry soil we have to weigh. If we have a sandy soil, that is a pure sand or very high in sand, so then we prefer to take 100 gram of the soil. And then we put this soil into the beaker, that is 400 milliliter beaker, and then we add 40 ml 2% sodium hexametaphosphate. It means 40 ml if we add 800 milligram in 40 ml, we will have 2% solution of sodium hexametaphosphate. Mean 800 milligram of sodium hexametaphosphate dissolved in almost 40 ml will give us the approximately 2% solution. We will add this 40 milliliter 2% sodium hexametaphosphate solution into the beaker as well along with this soil. The purpose to add this sodium hexametaphosphate is to disperse the soil. We know that the soil may have aggregates. The good soils have good aggregations, and it means when the soil is aggregated, the soil particles are attached to each other. So they are not dispersed. So then they will give the wrong value because we are partitioning the soil particle based on the size. अगर जो साइज है क्ले का साइज है, अगर 2-3 पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं तो वो तो हो सकता है कि वो सिल्ट के साइज के हों, तो वो हमें सही रीडिंग नहीं देंगे. तो हमने जितने भी पार्टिकल हैं उनको डिस्पर्स करना है, अलग-अलग करना है. तो उसका जो केमिकल ट्रीटमेंट है वो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट. इसमें सोडियम जो है वो सॉइल पार्टिकल्स के साथ अटैच होता है और एग्रीगेशन को तोड़ देता है, उनमें आपस में उनके फासले बढ़ा देता है, क्योंकि इसके गिर्द सोडियम के गिर्द जो शेल होता है हाइड्रेटेड साइज इसका या जो वाटर शेल होता है वो रिलेटिवली थिकर होता है जो कि सॉइल पार्टिकल्स को आपस में जुड़ने नहीं देता. तो जितने भी एग्रीगेट्स होंगे वो उसमें टूट जाएंगे. उसके बाद हमने इसमें 150 ml डिस्टिल वाटर ऐड करना है और फिर स्टर जो रॉड है उसके ग्लास रॉड नॉर्मली हम यूज करते हैं इसके साथ इसको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हमने 18 आवर के लिए छोड़ देना है.
तो 18 आवर के लिए छोड़ने का मतलब है कि जो सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है वो अपना सारा काम कर ले, जो केमिकल ब्रेक डाउन वो कर सकता है उसकी कर ले, सॉइल के अंदर सही तरह जज़ब हो जाए, जो एक्सचेंज साइड पे चला जाए, तो इसलिए हम ये टाइम इसको देते हैं। उसके बाद हमने वो जो हमारा सस्पेंशन बना है उसको हमने इस कप के अंदर डालना है। ये काइंड ऑफ शेकर, जिस तरह मिल्क शेक होता है उस तरह होता है। इसके अंदर हमने इसको उंडेल देना है और जितना भी वो सस्पेंशन हमने एक कप में बनाया था, 40 ml उसमें सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट था, 150 ml वाटर था, तो हमने इसको इस कप के अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह वाटर से साफ कर लेना है। यानी जो जिस बीकर में से हमने इस बीकर में से हमने उसमें डालना है, तो इसको अच्छी तरह वॉश करके उसी के अंदर डाल देना है ताकि कोई सॉइल पार्टिकल इस बीकर के साथ ना रह सके। Be sure that every soil particle has been removed. Fix the cup to an electric stirrer. ये इलेक्ट्रिक स्टरर है, इसके साथ इसको अटैच करें और इसको स्टर करें जिस तरह हम मिल्क शेक में करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। अगर उसमें सैंड ज्यादा है तो 6 मिनट ही काफी हैं, अगर सैंडी लोम्स हैं तो उसको 10 मिनट के लिए, और अगर क्लेई सॉइल हैं या रिलेटिवली क्ले कंटेंट ज्यादा है उसमें, तो हम उसको 15 मिनट्स के लिए मैकेनिकल शेकिंग करते हैं, जो कि मैक्सिमम है कि मैक्सिमम हम 15 मिनट्स के लिए करते हैं। इसका पर्पज ये है कि जो केमिकल ब्रेकडाउन हमने की एग्रीगेट्स की, उसको हम फर्दर जो है होमोजेनाइज कर दें, कि उस जितने भी अगर कोई रह भी गया है तो वो लूजन उनकी आपस में जो एग्रीगेशन में सोडियम जो है वो लूजन उनकी गिरफ्त जो है वो कमजोर कर देगा, एंड देन दैट कैन बी ब्रेक डाउन, that can be broken down by this mechanical stirrer. उसके बाद हमने जो बीकर वो मैकेनिकल शेकर के साथ जो डिस्पर्शन कप है उसको हमने इस 1000 ml जो सिलेंडर है जिसकी हाइट तकरीबन 36 प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर हो, उसके अंदर हमने इसको जितना भी मटेरियल है इसके अंदर डाल देना। उसके बाद उसको भी अच्छी तरह वॉश करके सारे साइड पार्टिकल जो हैं इस सिलेंडर के अंदर हमने डाल दें, और उसके बाद हमने उसमें हाइड्रोमीटर प्लेस करना है इस सिलेंडर के अंदर, जो पानी होगा उसके अंदर, और उसमें पानी डाल डाल के थोड़ा थोड़ा पानी उसमें डालना है, और देन दैट विल बी कम टू दिस मार्क, जो कि 1000 ml का मार्क है, वहां तक वो आ जाएगा। उसके बाद हमने हाइड्रोमीटर रिमूव कर देना है, लेकिन ये याद रहे कि उसको अच्छे आराम से बिल्कुल निकालना है क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है, वो टूट भी सकता है। उसके बाद हमने ये प्लंजर है हमारा, जब हाइड्रोमीटर आप रख देंगे अपने पैक में तो इस प्लंजर के जरिए आप इसमें जितना भी मटेरियल है उसको मिक्स करें, और उसके बाद बॉटम टू टॉप, हाँ ये प्लंजर जो है ये बॉटम से लेकर टॉप तक आप इसको प्लंज करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जो मिक्सचर है यानी जो हमारी सॉइल पार्टिकल्स हैं और वाटर जितना भी तकरीबन 1000 ml या 800 ml उसमें है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। During the mixing process, do not bring the base of plunger to close to the top of the water column or force it down with the column too vigorously. अब इस ये चूंकि मेटल का है इसको ना तो आपने जोर से मारना है नीचे लगे तो ये टूट जाए, ऐसे भी नहीं करना, और ना इसको बिल्कुल ऊपर लेके आना है जिससे फिर आपका जो सस्पेंशन है वो बाहर जा सकता है सिलेंडर से। तो इसको इस एरिया के अंदर इसको आपने अच्छी तरह प्लंज करना है ताकि जितना भी मटेरियल होगा वो होमोजेनाइज हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, when a uniform suspension is obtained, remove the plunger from the cylinder but carefully and start counting time as the plunger leaves the suspension. आपने प्लंजर को उसमें से निकालना है और उसके टाइम नोट करना शुरू कर देना। हमने जो पहली रीडिंग लेनी है वो हमने 40 सेकंड के बाद लेनी है, इसलिए आप फौरी तौर पे हाइड्रोमीटर को बड़े आराम से उसके अंदर आप डालेंगे ताकि वो ज्यादा उसकी मूवमेंट ना हो और वो जल्दी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाए। और बिल्कुल 40 सेकंड जब हो जाएंगे प्लंजर रिमूव करने के बाद, जब आपने प्लंज करके प्लंजर को साइड पे किया है और
उसके बाद से 40 सेकंड गुजर चुके हों तो आपने ये रीडिंग ले लेनी। तो यहाँ पे ये ग्रेजुएटेड है, चूंकि ये आपको नजर आ रहे हैं, तो ये आपको इसकी जो है रीडिंग नजर आ जाएगी, तो ये नोट कर लेनी है। उसके बाद आपने जो अच्छा, इसमें जो एक इंटरनेशनल साइंस सोसाइटी है उन्होंने 4 मिनट का कहा हुआ है कि 4 मिनट बाद पहली रीडिंग ले, लेकिन हम यूएसडीए को फॉलो करते हैं तो इसलिए हम 40 सेकंड को यूज करते हैं। लेकिन इसके साथ आपने टेम्परेचर रीडिंग जरूर लेनी है। टेम्परेचर किस चीज का? ये जो सस्पेंशन है सिलेंडर के अंदर, उसका टेम्परेचर आपने नोट करना है। तो अब हमारे पास दो रीडिंग्स होगी, एक हमने ये हाइड्रोमीटर से रीडिंग ली और एक हमने टेम्परेचर नोट किया इस सस्पेंशन का। मूव द हाइड्रोमीटर अप एंड डाउन इन द hydrometer up and down in the suspension to displace soil particles uh, which have settled on it and then remove it from the cylinder। कि आपने हाइड्रोमीटर से को इस तरह निकालना है कि उसके ऊपर कोई सॉइल पार्टिकल जो है वो ना रहे। फिर उसके बाद आपने 2 आवर्स के बाद आपने रीडिंग जो है वो लेनी। आफ्टर 2 आवर यू हैव टू टेक द रीडिंग। जो पहली रीडिंग आपने 40 सेकंड में ली और दूसरी रीडिंग जो है वो आपने 2 आवर्स के बाद लेनी। अब ये देखेंगे जब आप 40 सेकंड बाद रीडिंग लेंगे तो ये लेट्स से कि यहाँ पे तक है इसकी रीडिंग, तो जब ये 2 आवर्स के लिए होगा तो चूंकि उसकी जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो कम हो जाएगी, तो ये मूव करके नीचे जाएगा। तो जो ही चूंकि इसकी ग्रेजुएशन जो है नंबर ऊपर से नीचे की तरफ है, ये देखें 20 फिर 25, तो जब ये नीचे आएगा तो ये वैल्यू जो है वो कम आ जाएगी। यानी जितना आप के सॉइल पार्टिकल सेटल्ड हो जाएंगे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, हाइड्रोमीटर और नीचे चला जाएगा और ये रीडिंग जो है हमारी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये जो 40 सेकंड के बाद रीडिंग होगी वो ज्यादा होगी और जो 2 घंटे के बाद रीडिंग होनी है वो कम होनी है। और दूसरी रीडिंग में भी आपने थर्मामीटर के साथ साथ में उसका टेम्परेचर नोट करना है। अब टेम्परेचर हम क्यों नोट करते हैं, इस बात की आपको इससे समझ आ जानी चाहिए कि मैंने जब कहा है कि जब पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, तो ये हाइड्रोमीटर नीचे चला जाएगा। तो अगर हमारा साइल जो सोल्यूशन है उसका टेम्परेचर गिवन टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी और ये नीचे ज्यादा मूव हो जाएगा। इसका मतलब हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू होनी चाहिए थी उससे वैल्यू कम आएगी, तो इसलिए हम इसमें फिर मॉडिफिकेशन करते हैं, वो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं। सिंस द हाइड्रोमीटर इज कैलिब्रेटेड एट द टेम्परेचर 68 डिग्री फ़ारेनहाइट और 20 डिग्री सेंटीग्रेड, द रीडिंग obtained एट द टेम्परेचर मस्ट बी करेक्टेड। जो रीडिंग आप ले रहे हैं अगर उसका टेम्परेचर इतना नहीं है तो उसकी करेक्शन जो है जरूरी है। Add 0.2 to the observed hydrometer reading for every 1 degree rise in temperature from 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब मैंने कहा था ना कि जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो हाइड्रोमीटर मूव नीचे करेगा और वैल्यू कम आएगी, तो इसलिए हम उसमें हर ईच डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट हम उसमें ऐड करते हैं 0.2, वैल्यू जो है हाइड्रोमीटर की वैल्यू के अंदर हम 0.2 ऐड कर देते हैं। एंड subtract 0.2 फ्रॉम ऑब्जर्व्ड हाइड्रोमीटर रीडिंग फ्रॉम एवरी 1 डिग्री फॉल इन टेम्परेचर। और द सेम वे कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी तो हमें वो वैल्यू ज्यादा देगा, तो उस सूरत में हमने हर डिग्री फ़ारेनहाइट पे हमने 0.2 कम करना है। और अगर आपका जो थर्मामीटर है वो फ़ारेनहाइट नहीं सेल्सियस वाला है, तो फिर आपने चूंकि वो रिलेटिवली बड़ा होता है उसका एक दर्जा जो है, तो हमने हर दर्जा ज्यादती में अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हम 0.36 ऐड करेंगे और अगर हर डिग्री सेंटीग्रेड का 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होगा तो हमें इसमें 0.36 जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करना चाह रहे हैं।
कि हम इसको किस तरह करते हैं। अब हमारे पास रीडिंग्स आ गई कि हमने हाइड्रोमीटर से रीडिंग ली और उसके हम बाद हमने उसकी करेक्शन भी कर ली। करेक्शन हमने किस बेस की है, टेम्परेचर के बेस के ऊपर। द हाइड्रोमीटर स्केल इंडिकेट्स ग्राम ऑफ सस्पेंडेड। अब जो वैल्यू हमें आ रही है, जो करेक्टेड हमारे पास रीडिंग आ रही है, वो हमें क्या बताती है? The hydrometer scale indicates grams suspended material 100 ml of water. In this exercise, the volume of water in the suspension was 800 milliliter. जब हम उसमें हाइड्रोमीटर डालते हैं तो और साइल का भी उसमें वॉल्यूम है, तो हम कंसीडर करते हैं कि वो 800 ml उसका जो है वो वॉल्यूम, यानी उसके अंदर जो सोल्यूशन और जो लिक्विड हमने फ्लूइड डाला होता है वो 800 ml होता है, इसलिए हम उसका जो है ना वो फैक्टर यूज करेंगे। The amount of a soil separate in a given soil sample can be calculated. Total suspended material जो है equal to corrected hydrometer reading, जो टेम्परेचर के साथ हमने करेक्ट किया है, मल्टीप्लाइड बाई 800/1000। अगर ये हमारा वॉल्यूम जो फ्लूइड है अगर 1000 ml होता तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं थी इसको मल्टीप्लाई करने। एग्जैक्टली जो रीडिंग हमारी CHR आई है वो हमें ग्राम्स जो है सस्पेंशन, सॉरी ग्राम्स जो सॉइल पार्टिकल्स वो हमें दे रही। अगर हम ये हमारा 1000 का होता तो फिर हमें डायरेक्टली जो है वो CHR जो है बेसिकली हमें ग्राम सस्पेंडेड मटेरियल बता रही है ना। तो चूंकि हमारा 800 ml है इसलिए हमने ये फैक्टर लगाया 800 ml डिवाइडेड बाई 1000। और अगर हम इसको परसेंटेज में करेंगे तो इसी को टोटल सस्पेंडेड मटेरियल, ये जो टोटल सस्पेंडेड मटेरियल है इसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट से। वेट हमने कितना लिया था 40 ग्राम और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये हमारे पास टोटल सस्पेंडेड मटेरियल इन परसेंट आ जाए। ठीक हो गया। ये है उसको कैलकुलेट करने का तरीका कि हम अगर हमारे पास हाइड्रोमीटर रीडिंग है तो हमने पहले तो उसको करेक्ट करना है टेम्परेचर, और उसके बाद हमने वो जो करेक्टेड हाइड्रोमीटर रीडिंग है वो बेसिकली हमें ग्राम सस्पेंडेड मटेरियल बताती है। और अगर ये क्योंकि उसमें सिलेंडर के साइज की इन्वॉल्वमेंट है, उसके फ्लूइड की है, क्योंकि हमने पीछे हमने इसके जम्पशन में पढ़ा है, इसके प्रिंसिपल ये थ्योरी में पढ़ा है कि जो उस कॉलम की हाइट है, जो अमाउंट ऑफ जो फ्लूइड है वो मैटर करता है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड किया गया है उसको 1000 ml के लिए किया गया, लेकिन हमारे पास चूंकि 800 है तो हम इसको 800 से 800 को 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0.8 आ जाएगा उसका फैक्टर। तो ये यूज करके हम टोटल सस्पेंडेड मटेरियल निकाल लेते हैं। उसके बाद टोटल सस्पेंडेड मटेरियल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉइल मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वो परसेंट वैल्यू